Hello friends, welcome to Pro Talent and I'm Nitin Parmar. My dear students, we are bringing our series on family law. We are going to discuss about some important concepts connected to family law. Now, what are those important concepts? Concepts related to marriage, concepts related to divorce, concept related to family, concepts related to inheritance, and a lot of them. Okay, I'm sure you have seen in CLAT examination that there are some questions are coming from family law. So we thought that we are going to add this concept to you. So family law is very important. Today is the first session. Okay, in this first session, I'm going to discuss about who are Hindus, okay, by law. Okay, so we all know that, look, in our, you can say, day-to-day life, we see, oh, this is a Hindu, this is, you can say, not Hindu, so we know it, but how do we define legally? Okay, so for example, let's say in Islam or in Christianity, it is very simple to identify that who is Muslim. So someone who's born to Muslim, someone, you can say, got converted into Muslims. So there are proper, you can say, ceremonies are available for Islam, the proper ceremonies are available for Christian. So we have to understand who are Hindus, because that's how we will possibly define in law, and that's what we are going to discuss. That's point number one. Number two, we are also going to understand that, you can say, in Hindu law, whatever the laws we are going to study, what are the origin, what are the kind of, you can say, sources of law, and what are the varieties of the thought processes of, you can say, Hindu law. My dear students, Hindu Code Bill or Hindu Personal Law Bill was one of the first major law brought in independent India, and that created lot of disturbance in the country. So we are not getting into those disturbance, जिसकी वजह से B.R. Ambedkar साहब had to resign. ठीक है, बहुत सारी चीजें हुई, we are not getting into that today. But yes, for sure, we are going to talk about that in, you can say, upcoming few session. आज के session का agenda बहुत simple सा है. We are going to talk about two things. One, who is Hindu? Okay, so as per law, who is Hindu? And second is, what are the sources of Hindu law? ठीक है, चलिए समझते हैं who is Hindu. So दोस्तों, आपको ये पता होना चाहिए that Hindu as in a religion, ठीक है, जिसको आज हम मानते हैं, ठीक है, पर जब इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है, तब ये एक वे ऑफ लाइफ था. ये कोई रिलीजन नहीं था जहाँ पे कोई कोड नहीं थे, वहाँ पे कोई लॉ नहीं था, सिंपल वे ऑफ लाइफ था. ठीक है, और इसीलिए हिंदू टर्म इज नॉट डिफाइंड, यू कैन से, एनीवेयर एज सच. ठीक है, प्राइमरली यू कैन से इन अवर उपनिषद्स, इन अवर वेदास नहीं लिखा है. Yes or no? However, the Hindu word is defined based on the geography. The people who are living near a place called Sindhu Ghati Sabhyata, Indus Valley Civilization के समय के बारे में बात हो रही है. आज से करीबन 3-4 हजार साल पहले जो लोग सिंधु घाटी के लोग थे, सिंधु घाटी सभ्यता में रहते थे, उन लोगों को कहा गया दे आर हिंदूस, बिकॉज इंडस वैली, जिसको इंडस बोलते हैं, उस जमाने में उसको सिंधु बोलते थे. सिंधु बोलते बोलते वो हो गया हिंदू. Okay, so possibly by 16th century, when Britishers came or this colonial rulers came, they tried to, you can say, put all historical things into perspective. They've written, so that's how possibly the word Sindhu got converted into Hindu. दोस्तों, ये जो word Hindu है, हमने बात करी, it is not based on the religion, so it is based on the geography. The people of this land, नोट किया जाए, ठीक है, the people of this land, okay, who are living near the सिंधु घाटी सभ्यता, और फिर उनके बाद जो भी लोग आए, इनको हिंदू कहा गया. Yes or no? In another way, the people who are, you can say, deliberately not Muslims or not Christians are Hindus, which means, you can say, it is a sort of negative definition. ठीक है, it says who is, you can say, not Hindu. भाई कौन हिंदू नहीं है? ठीक है, the people who are Islam, who are part of Islam, who are part of Christian, ठीक है, they are not Hindus. बाकी सब हिंदू है ना. सो बाकी सब कौन हिंदू है? जो हिंदू तरीके से रह सकता है,
It's a way of life. So anyone who follows way of life of Hindu, that is Hindu, है ना. सनातन धर्म जिसको बोलते हैं, ये सुनो. तो अब सवाल ये पैदा हो जाता है कि यार ये थोड़ी ना स्ट्रॉन्ग डेफिनेशन नहीं है. It is reasonably, you can say, a weak definition. So can we make it more strong? Yes, let's make it more strong. Okay. So, however, this is a very important source for the definition to understand, and that's why we are going to talk about this. So, under Hindu Marriage Act 1955, ठीक है, a person is considered Hindu based on this particular, you can say, rules. हम समझते हैं. And remember, it is not only in the Hindu Marriage Act 1955, but even in our constitution. ठीक है, article number 25 also defines who are Hindus. एक एक करके समझते हैं. पहला, anyone who is Hindu by religion, okay, or any of their form of development, which means the people who become, you can say, Virasheva, people who become Lingayat, people who follow Brahmo Samaj, people who follow Prarthana Samaj, people who follow Arya Samaj, ठीक है, they are also a part of Hindu धर्म के कुछ ग्रुप है. So they are basically Hindus by religion. जो लोग विचारों में, जो लोग अपनी कस्टम्स में, अपने काम करने के तरीकों में, अगर वो जिस तरीके से ये विचार फॉलो करते हैं, they are by religion, they are Hindu. Similarly, a person professing Hindu or Buddhist or Jain or Sikh, by law they are Hindu. Okay, so that means under law, if we have to talk about who is Hindu, okay, ठीक है, someone is saying कि look, there is Sikh guy or there is Buddhist guy and they want to possibly follow as per the law related things. कभी उनको inheritance के बारे में बात हुई, कभी उनको marriage के बारे में बात हुई, तो उनको कैसे गिना जाएगा, मतलब उनको हिंदू माना जाएगा और उनके ऊपर ये लॉ लगेगा. Yes or no? Then third is the person who is not Christian, not Muslim, not Parsi or Jew by religion, ठीक है, will be governed by Hindu law unless, या तो वो हिंदू लॉ के द्वारा होगा, या unless it is proved that such a person will not be governed by Hindu law. अगर वो ये prove कर सके कि I am from a different dharma, different religion and I want to be governed through a different route, possible है ना, तो उसको बोलेंगे. नहीं तो उसको मान लेंगे कि भैया तू हिंदू है, अगर तू एक से क्रिश्चियन है, मुस्लिम है, पारसी है, ज्यू है बाय रिलीजन, सो वी विल फॉलो अ डिफरेंट सिस्टम फॉर यू. सो इट इज नॉट जस्ट वन सोर्स फॉर ऑल दिस. ओके, एनी चाइल्ड, legitimate or illegitimate, both of whose parents are Hindus, Buddhist, Jain or Sikh, is Hindu. ठीक है भाई, बच्चा लेजिटिमेट हो या मतलब इलेजिटिमेट हो, इट डजेंट मैटर. अगर उसके पेरेंट्स एक से हिंदू थे, ठीक है, तो ही इज हिंदू. अगर उसके पेरेंट्स सिख थे, बुद्धिस्ट थे, जैन थे, ही इज हिंदू. बट व्हाट विल हैपन इफ वन ऑफ द पेरेंट इज हिंदू एंड द अदर पेरेंट इज नॉन हिंदू? यस और नो? हिंदू एंड नॉन हिंदू फ्रॉम अ लीगल पॉइंट ऑफ व्यू, हिंदू इज बुद्धिस्ट, Jain and Sikh are Hindu, and non-Hindu is Islam, Christian, है ना, this Parsi and Jewish. Okay, so this is how the difference is. So then we have to take a decision based on the upbringing of a child. Okay, so let us say father is Muslim, mother is Hindu. Okay, और बच्चे का पूरा डेवलपमेंट लेट अस से पापा के धर्म के मुताबिक हुआ, इस्लाम का हुआ, so then he is Islam, he is not Hindu. ओके, पर अगर उसका परवरिश पूरा हिंदू धर्म के मुताबिक हुआ, ही इज हिंदू. ये सुनो, ठीक है. और कोई भी बंदा कन्वर्ट हो गया हिंदू में, बुद्धिज्म में, जैन में, सिख में, सो वी विल ट्रीट हिम एज हिंदू. ओके, एनीवन हु इज कन्वर्टेड इनटू एनी ऑफ दिस. ओके, इनफैक्ट हिंदू धर्म में कन्वर्जन का कोई स्पेसिफिक सेरेमनी नहीं है. इफ let us say Mr. A has married to, you can say, Miss B, और Miss B marriage के बाद, Miss B was Muslim, उन्होंने Mr. A के साथ शादी करी, Mr. A was Hindu, और उन्होंने जब शादी करी, and now she is following the rituals of Hinduism, ठीक है, she became Hindu, खत्म, simple. अगर उनका तरीका हिंदू है तो हिंदू है. yes or no? So intention to be converted to a Hindu and conduct in that regard is enough proof to prove that that person is Hindu or that person is not Hindu. Simple. Okay, उसका intention क्या है?
और उसने उसका कंडक्ट क्या है वो देखा जाएगा। बड़ा फेमस केस हुआ था पेरुमल वर्सेस लेकिन से पुन्नु स्वामी का केस, ठीक है। देयर वाज अ पेरुमल, शी मैरिड टू अ गर्ल, शी वॉज क्रिश्चियन, आफ्टर मैरिज शी बिकेम हिंदू, ओके, ठीक है, हर कंडक्ट वॉज हिंदू, ठीक है, सिंपल, तो शी बिकेम हिंदू। उनका एक बच्चा भी पैदा हुआ, ठीक है। अब ये बच्चा जब पैदा हुआ उसके बाद दोनों में सेपरेशन भी हो गया, ठीक है। जब उनके बीच में सेपरेशन हुआ, जब दोनों का सेपरेशन हुआ, ठीक है, और बाद में कुछ सालों के बाद बच्चे ने, जिसका नाम था पुन्नु स्वामी, उसने पेरुमल से, ठीक है, से अपनी प्रॉपर्टी, अपनी जायदाद का हक मांगा एज पर हिंदू लॉ। पेरुमल ने कहा कि भाई तू तो हिंदू है नहीं, तो तेरे को किस बात का प्रॉपर्टी का अधिकार मिले, ठीक है ना। तो कोर्ट ने बोला देखते हैं कौन है हिंदू कौन नहीं है। देखा कि भाई उनकी माता जी, ठीक है, ये बच्चे की माता जी, पुन्नु स्वामी की माता जी, है ना, हिंदू धर्म के मुताबिक रहती थी, कंडक्ट हिंदू धर्म का था, और पूरा का पूरा डेवलपमेंट ऑफ पुन्नु स्वामी वॉज ऑल्सो अकॉर्डिंग टू द हिंदू लॉ, ये सुनो। सो बाय दैट लॉजिक यू कैन से पुन्नु स्वामी बिकेम हिंदू, and thereby he was entitled a property from Perumal to get this as per Hindu custom law. Is that very clear? Great. ठीक है, I think this is pretty clear. बहुत ही easy concept था हिंदू का. Now we are going to discuss about one very important part. ठीक है, अब हमने समझ तो लिया हिंदू कौन है, ये सुनो, हिंदू कौन है वो समझने के बाद हमारा डिस्कशन जाना चाहिए, ठीक है, अबाउट कि ये हिंदू लॉ के सोर्सेस क्या है। नाउ वी ऑल नो दैट हिंदुइज्म की दुनिया, ठीक है, अलग अलग समय पर डेवलप हुई। सनातन धर्म जिसको बोलते हैं, क्या बोलते थे इसको, सनातन धर्म है, ठीक है। ये जो सनातन धर्म है, ठीक है, वो एक से एंशियंट ज़मानों से, इंडस वैली के ज़माने से चलता आ रहा है, जहाँ पे पहली बार एक सिविलाइजेशन चालू हुई तब से ये चला आ रहा है। उस ज़माने में जब इंडस वैली के ऊपर, है ना, एक थ्योरी बोलती है कि आर्यंस आए और आर्यंस वेदास लेकर आए, ठीक है। तो वेदास लिखे गए थे ऋग्वेदा, यजुर्वेदा, सामवेदा, अथर्ववेदा, इन सबको श्रुति कहा जाता है। व्हाट यू मीन बाय श्रुति? श्रुति इस किसी ने सुना है, ठीक है। श्रुति इज व्हाट इज हर्ड, लोगों ने सुना है, इट इज नॉट रिटन मटीरियल, इट इज नॉट रिटन मटीरियल, ठीक है, ओके, इट इज सुना है, किसी एक ने सुना, उसने किसी और को कम्युनिकेट किया। द नॉलेज इज गॉट कम्युनिकेटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अदर टू अदर। दैट मीन्स जो ऋषि मुनिया थे उन्होंने अपने बच्चे को दिए, मतलब अपने शिष्यों को दिए, उन शिष्यों में से कोई ऋषि मुनि बन गया, उसने आगे पास किया, एंड दैट्स हाउ दिस हैज पास्ड, ठीक है। सो देयर आर 4 श्रुतिस, 4 वेदास, ठीक है, विच इज ऋग्वेदा, यजुर्वेदा, सामवेदा, अथर्ववेदा। ऋग्वेदा इज द ओरिजिनल एक से पार्ट, उसके 2 भाग हुए थे, उसके एक से जो क्या बोलते हैं द यजुर्वेदा एंड सामवेदा, दे आर ऑफशूट, उसमें से कुछ निकले हुए पार्ट है, वाल अथर्ववेदा बाद में आए। दोस्तों, वेदों में जो बातें करी गई, दे वर नॉट द लॉ, रिमेंबर दैट वॉज मेजरली अ वे ऑफ लाइफ, जिंदगी जीने का तरीका था उसमें, कि आपको धर्म के मुताबिक जीना कैसे है, ठीक है ना, अ वे ऑफ लाइफ, हाउ डू यू फॉलो धर्म, दैट इज व्हाट दे एक्चुअली फोकस्ड ऑन, ओके, कि धर्म को कैसे फॉलो करे, ठीक है, धर्म क्या होता है, धर्म के मुताबिक आपके पास क्या अधिकार है, ठीक है, आप क्या कर सकते हो, आपकी ड्यूटी क्या है। हालांकि कोई कोड नहीं था, कोई लॉ नहीं था, पनिशमेंट नहीं था, और अगर पनिशमेंट के बारे में बात करी तो उसको सिर्फ बोला गया पाप है और पुण्य है, दैट्स इट, दैट्स द ओनली थिंग इट वाज टॉक्ड अबाउट, कि ऊपर जाएंगे, स्वर्ग में जाएंगे तो ये मिलेगा, नर्क में जाएंगे, दैट इज द ओनली थिंग इट वाज टॉक्ड अबाउट। सो वेदा डिफाइंड द एंटायर सोसाइटी, उस सोसाइटी का मेन यूनिट, सबसे छोटा यूनिट उनके मुताबिक कोई इंडिविजुअल नहीं था, बट अ फैमिली, family was a main unit for Vedas, ठीक है, everything was based on that family, okay, everything was based on family, okay, not an individual। आज के ज़माने में शायद आप देखें कि हम दुनिया को देखते कैसे, टुडे वी सी आवर दुनिया एज अ वेरी बेसिक यूनिट, एज एन इंडिविजुअल। आज हमारा देश किसके ऊपर टिका हुआ है, एक इंडिविजुअल की आइडेंटिटी, दैट इंडिविजुअल इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू दी, यू कैन से, कंट्री, ठीक है, बराबर, दैट्स हाउ इट इज कनेक्टेड, ये सर नो, बराबर है। ऐसा नहीं है कि फैमिली मेन यूनिट है, एक इंडिविजुअल एक यूनिट है, फैमिली
बेसिक यूनिट नहीं है. सो वेदास डिस्क्राइब हिंदू सोसाइटी, ठीक है, विच वॉज अ पेट्रियार्कल सोसाइटी, पुरुष प्रधान यू कैन से सोसाइटी थी, और जो यूनिट था उसका दैट वाज फैमिली, ठीक है, और उस यूनिट के जो हेड थे उसको कहते थे गृहपति. सो वन was Shruti, then came Smriti, then came Smriti. Remember, Smriti is basically what is remembered. Okay, so Hindu law Smriti से भी बहुत आए, ठीक है दोस्तों. दिस आर द बॉडी ऑफ टेक्स्ट, ठीक है, बॉडी ऑफ टेक्स्ट which can be attributed to one author. Remember, Shrutis authorless थी, कोई एक ऑथर नहीं था उसका. बहुत सारे लोगों ने सुना, पास किया, सुना, पास किया. while you can say Smriti is supplementing all the ज्ञान of Shruti. Smriti supplements all the ज्ञान of Shruti, okay, ठीक है, and they are with the author. 3 ऑथर मेजरली, बहुत सारी स्मृतिज है, उनमें से 3 बड़ी फेमस, मनुस्मृति, यज्ञवल्क्य स्मृति एंड नारद स्मृति. मनुस्मृति इज एन ओल्डेस्ट स्मृति. मनु भगवान से मनाली करके जगह बनी, ये सुनो, मनु भगवान का जन्म वहां पे हुआ था, ठीक है, और मनुस्मृति उन्होंने लिखी, ठीक है. इट इज सप्लीमेंटिंग ऑल द थॉट्स ऑफ वेरियस जनरेशंस, ठीक है, ओके, बिकॉज इट वाज राइटिंग, ठीक है, काफी पुरानी थी, ठीक है, सॉरी, इट वाज नॉट रिटन, इट वाज ओरली ट्रांसमिटेड, ठीक है. सो ब्राह्मण कॉल मनु हु रोट दिस. मनुस्मृति में ब्राह्मण का सबसे ऊंचा पद था, शूद्र और विमेन के कोई अधिकार नहीं थे, ये सुनो, ठीक है. इस विचार के द्वारा मनुस्मृति आई. यज्ञवल्क्य केम, इट वाज रिटन बिटवीन बुद्धा एंड विक्रमादित्य के समय और बुद्धा के इस पीरियड में लिखा गया. इट वाज more concise than Manu, ठीक है. It was more liberal than Manu. It also recognized some rights of women, ठीक है. They also considered कि अच्छा वुमेन के पास प्रॉपर्टी इनहेरिट करने का अधिकार है, ठीक है, प्रॉपर्टी लेने का अधिकार है ना. शूद्रों को भी उन्होंने अच्छा स्टेटस दिया. एंड देन केम नारद स्मृति विच वॉज वेरी कैथोलिक, यूनिवर्सल, ब्रॉड माइंडेड. दैट वॉज नारद स्मृति. नारद स्मृति वॉज ब्रॉड माइंडेड compared to Manu and Yajnavalkya, wherein they recognize a concept of widow remarriage. Just imagine in a country or in a society where women were not given rights. Here women are given, the widow were given remarriage ka right, which is huge. Women can hold property, ठीक है. Interestingly, they also mention one thing, कि ये जितने भी वेदास, दैट इज श्रुति और स्मृति है, वो तो है ही, वो प्रिंसिपल्स है, पर उस जगह पे जो राजा राज करता है, वो राजा ने जिस तरीके के लॉ बनाए उसका स्टैंडिंग ऊपर होगा, ठीक है. उसके बाद ये उसके नीचे ये लॉ आएंगे. दैट इज हाउ दे ऑल्सो एक्सेप्टेड. ये सुनो, बिकॉज राजा का कर्तव्य है राज करना, अपने सब्जेक्ट्स की सुरक्षा करना, और उसकी सुरक्षा के लिए उनको जो जो भी करना पड़े सब करना पड़े. अगर वो पुरानी ही चीजें फॉलो करते रहेंगे तो शायद अच्छे से काम न कर पाए. सो स्मृति लेड आउट रूल्स रिगार्डिंग प्लीडिंग्स, एविडेंस ऑफ विटनेसेस, है ना, जो बाद में आज हमारे पास CRPC, IPC, कितना सारा चीज आ गया, ये सुनो. सो एक तरीके से देखा जाए तो भैया नारद, क्योंकि एक नेपाली सेज थे, काफी बड़े विचारों के साथ इन्होंने चीजों को यहाँ पे रखा था, बहुत ब्रॉड माइंडेड थे. इनफैक्ट if you go and meet students of Nepal, ठीक है, there are a lot of you can say glitch in their heart, ठीक है, about you can say धर्म रिलेटेड इश्यूज विथ इंडिया. वो बोलते हैं इंडिया ने हमारा ही पूरा धर्म का सब कुछ लूट लिया, है ना. ऐसा once I was traveling, ठीक है, and there was a group of you can say school children when they came to a trip on India for some around 20-21 days, ठीक है, and I had a lot of discussion. So one of the child told me this कि तुम लोग हमारा सब कुछ लूट चुके हो. बुद्धा ले लिया, सीता ले लिया, नारद, सब कुछ. तो आई वॉज वेरी शॉक कि उस बंदे को, मतलब 9th स्टैंडर्ड में पढ़ने वाला बच्चा, और उसको इतना सारा ज्ञान था. आई वॉज वेरी हैप्पी, ठीक है. सो वन इज श्रुति, अदर इज कॉल्ड स्मृति. नाउ आफ्टर श्रुति एंड स्मृति, ठीक है, देयर वर कमेंट्रीज एंड डाइजेस्ट, ठीक है. कमेंट्रीज एंड डाइजेस्ट आर यू कैन से डिस्क्राइबिंग दिस टू थिंग्स इन अ लिटिल सिंप्लीफाइड मैनर, ओके, ताकि एक तरीके से समझ आए,
ठीक है, कि एग्जैक्टली इन सब चीज़ों का एक जनरल एनालिसिस करके उनको सही सही पर्सपेक्टिव में ऐड करना, जस्ट लाइक व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ इन फ्रंट ऑफ यू इज डूइंग दैट कमेंट्री ओनली. ठीक है, none of this idea was basically developed by me. It is the law which is talking about all this. So it is all written from a book, ठीक है, and written in a book. I have taken from it. You can say attended few classes, ठीक है, वहाँ से I taken this and then I'm just putting in a commentary form or in an easy digestible manner. Yes or no? So there are two commentaries. One called Mitakshara, other is called Dayabhaga. Mitakshara was of 11th century के समय पे आई थी ये, ठीक है. It's a brief compendium, ठीक है, which is commentary by विजनेश्वरा ने यज्ञवल्क्य स्मृति से एक कमेंट्री लिखी जो 11th सेंचुरी के समय पे आई. दयाभागा वो एक से जिमुत वाहना ने लिखी जो 12वीं सेंचुरी में आई. ठीक है, इट इज नॉट स्पेसिफिक टू सम श्रुति और स्मृति बट इट इज डाइजेस्ट ऑफ ऑल स्मृति एंड श्रुतिस. Okay, so that is very interesting. Okay, so these commentaries are also sources. So what happens whenever there are some cases coming up which is related to Hindu marriage, Hindu law related, and if there are substantial questions are being asked, so when such kind of dispute comes, they have to go through all this, you can say text, read it, understand it, put that into perspective. Okay, that is how they are doing. Okay. And then came schools of thoughts, schools of Hindu law. Mithila, Banaras, Dravida, Maharashtra, Bengal school of, you can say, Hindu law. These are majorly Mitakshara. Okay, and this is basically Dayabhaga. Okay, ठीक है. So ये दयाभागा से बना हुआ है, ठीक है, और ये मिताक्षरा से बना हुआ है. ठीक है, मिथिला, बनारस, द्रविड़ा, महाराष्ट्र, ठीक है, ये एक स्कूल ऑफ थॉट्स है. स्कूल ऑफ थॉट्स का मतलब होता है एक परंपरा, है ना, एक आइडियोलॉजी, है ना, वहाँ से बनी हुई है, उसके बारे में बात है. ठीक है, सो देन श्रुति, स्मृति, कमेंट्री एंड आज के ज़माने में, ठीक है, बन के आता है जुडिशियल, यू कैन से डिसीजंस, लेजिस्लेचर, है ना, वो सब चीज़ें इसके अंदर आती है. सो वन इज जुडिशियल डिसीजंस, वेरी इंपॉर्टेंट वन. जजिस ने कोई डिसीजन दे दी है ना, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. अगर पुराने कोई जज ने जजमेंट दे दिया देन वी हैव टू एक्सेप्ट. समटाइम्स लेजिस्लेशन. ठीक है दोस्तों, देश इतना बड़ा है, इतने सारे डिफरेंट प्रैक्टिसेस, इतने डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट कस्टम्स चलते हैं, कन्फ्यूजन ना हो. और इसकी वजह से उन्होंने बोला एक काम करते हैं, पूरे देश में यूनिफॉर्म लॉ बना देते हैं. एंड दैट यूनिफॉर्म लॉ विल बी वेरी कॉन्क्रीट, इजीली एक्सेसिबल, इट इज एसर्टेनेबल, आइडेंटिफाइबल कि क्या है, क्या प्लस है, क्या माइनस है, क्या सही है, क्या गलत है. एंड ऑब्वियसली इट विल हैव सम अथॉरिटी. यस और नो. तो हमारे यहाँ पे कौन कौन से महत्वपूर्ण यू कैन से लेजिस्लेशन बनाए गए, और ये सब लेजिस्लेशन कब बनाए गए? ब्रिटिशरों के समय पे बनाए गए. और यही ब्रिटिशरों के समय पे जो बनाए गए लॉ, जिसकी वजह से बहुत सारे हिंदूज को आया गुस्सा. उनमें एक थे मंगल पांडे जी. इन्होंने 1857 पे इतना ज़्यादा गुस्सा आया कि बंदूक लेके वो चालू हो गए. Yes or no? So that is how the scenario took place. बराबर है, चलो बढ़िया. So that is the mutiny, Sepoy mutiny. That is what I am referring to. I am sure all of you know this. Okay? चलिए बढ़िया. बहुत बड़ा चेंज आया था उस जमाने में हमारी सोसाइटी में. कास्ट डिसेबिलिटी रिमूवल एक्ट 1850. प्राइमरली अगर कोई बंदा है, कोई पर्टिकुलर कास्ट का है, ठीक है, उसको अगर उन्होंने एक्सपेल कर दिया, ठीक है, ओके, क्योंकि ही इज कन्वर्टेड हिज रिलीजियन, तो उसको प्रोटेक्ट करने का प्रॉपर्टी के लिए क्या अधिकार होगा? हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट, विडोज कैन रीमैरी. हिंदू विल्स एक्ट, हिंदूज डिड नॉट हैव एनी लॉ विच अलाउड देम टू मेक विल, तो अब ये विल बनाने के काबिल होने लगे. स्पेशल मैरिज एक्ट टू अलाउ इंटर रिलीजियस, इंटर कास्ट, इंट्रा कास्ट मैरिजेस. सो दोस्तों ये हुआ ये कि हिंदू धर्म के अंदर कुछ श्रुति, स्मृति, वेदोस, उपनिषद से दुनिया चल रही थी. एंड बाय द टाइम वर्ल्ड आगे बढ़ने लगा था, ये सनो, है ना, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, ये लोग आगे बढ़ने लगे थे. और वहाँ पे ये सब सोसाइटी के नए नए प्रॉब्लम आने लगे थे, ये सनो, तो उसके सॉल्यूशन भी ये लोग लेकर आए. और ये थे उसके सॉल्यूशंस लॉ बनाकर, ठीक है, और जिसको हमने यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया. ये सनो, फिर आए मॉडर्न लेजिस्लेशन. ठीक है, जो सबसे बड़ा मॉडर्न लेजिस्लेशन आया, ठीक है, विच इज कॉल्ड हिंदू कोड, जो 4
यू कैन से लॉ में डिवाइडेड था। हिंदू मैरिज एक्ट 1955, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956 एंड हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. जवाहरलाल नेहरू डिसाइडेड टू ड्रॉप दिस आइडिया. अंबेडकर डिड नॉट लाइक दिस, ठीक है, कि ये सब हम ड्रॉप कर दें, बराबर है, और इसकी वजह से उन्होंने रिजाइन भी कर दिया था. सो द आइडिया ऑफ दिस लॉ इज मेकिंग यूनिफॉर्म कोड फॉर ऑल हिंदूज. सभी हिंदूज के लिए एक ही लॉ है, विच इज दिस. ऐसा नहीं कि Hindus of this region and Hindus of other region have a different custom. In fact, they had different concepts. They had different concepts of dharma, they had different concepts of customs, but in this modern world, it is very different. Yes or no? So this new code के ऊपर ये आरोप लगाया गया, इस न्यू कोड के ऊपर आरोप लगाया गया कि इन्होंने हिंदू सेक्रेड हिंदू धर्म के ऊपर अटैक किया है, ऐसा लगाया गया, ठीक है, ऐसा माना गया. बट फाइनली ये डेवलप हुआ और ये आज एक फंडामेंटल फ्रेमवर्क की तरीके से काम करता है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. यस और नो, ठीक है. सो जुडिशियल डिसीजंस एंड लेजिस्लेशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. इसके अलावा द कस्टम्स and general principles and rules of equity, justice and good conscience will be applied on Hindu law. Yes or no? What do you mean by customs? Customs are basically अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग तरीके से लोग रहते हैं, अलग अलग तरीके के प्रोसेस फॉलो करते हैं. कस्टम किसको बोलेंगे? एक तो एंशियंट होना चाहिए, रिजनेबल होना चाहिए, सर्टेन होना चाहिए, यूनिफॉर्म होना चाहिए, ऑब्लिगेटरी होना चाहिए. एंशियंट मतलब काफ़ी पुराना होना चाहिए. रिजनेबल ऐसा नहीं होना चाहिए कि कस्टम है कि भाई आप अपना हाथ काट के भगवान को दे दो, तो वो रिजनेबल थोड़ी है. सर्टन है, वेग नहीं होना चाहिए कि भगवान को आपको प्रसन्न रखना है. भगवान को प्रसन्न रखना का मतलब भगवान को क्या देना, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है. तो भैया अनसर्टन है ना, भगवान को प्रसन्न रखना इज अ वेरी अनसर्टन वर्ड. यूनिफॉर्म सबके लिए सेम, ऑब्लिगेटरी होना चाहिए, एंड इट इज ऑब्जर्व्ड कंटिन्यूअसली विदाउट एनी इंटरप्शन, ठीक है, और कोई इंटरप्शन के बगैर कंटिन्यूअस होना चाहिए. इट शुड नॉट बी इमोरल, इट शुड नॉट बी अपोज्ड टू पब्लिक पॉलिसी, और इट इज यू कैन से इट शुड नॉट बी अपोज्ड टू अ रिटन रूल, ठीक है. ऑब्वियसली जैसे जैन धर्म में एक सिस्टम थी और एक सिस्टम है जिसको बोलते हैं संथारा. संथारा में एक पर्सन है हु डिसाइड्स कि उसको मोक्ष लेना है, उसको इस सिस्टम से चला जाना है. सो ही सिट्स एट वन प्लेस, वो त्याग कर देते अपने खाने पीने का, एंड देयर बाई ही लिव्स हिज यू कैन से सोल फ्रॉम दिस बॉडी. अब एक कोर्ट ने बोला संथारा इज ए सुसाइड, ठीक है. सुप्रीम कोर्ट ने उसको बोला नहीं, दिस इज वेरी एंशियंट मेथड, इट इज़ वेरी यूनिफॉर्म मेथड, ऑब्लिगेटरी है, फोर्सफुल तो है नहीं, ठीक है, कि कोई आपके ऊपर फोर्स थोड़ी कर सकता है. आपकी मर्जी, आपको जो करना है करो. आपको करना है क्या संथारा, आप कर सकते हैं. एंड इट इज ऑब्जर्व continuously for more than 2000 years without any interruption. So therefore it is a custom and that is to be followed. Yes or no? That is very important. So दोस्तों हमने देखा कि सोर्सेस ऑफ लॉ क्या है. हिंदू लॉ में श्रुति है, स्मृति है, कमेंट्रीज है, ठीक है, डाइजेस्ट है, जुडिशियल डिसीजंस है. ये काफ़ी पुरानी चीज़ें हैं. Yes or no? ये थोड़ी सी मतलब कंटेम्पोररी है. जुडिशियल, लेजिस्लेटिव, कस्टम्स और जनरल रूल्स ऑफ इक्विटी, जस्टिस, गुड कॉन्साइंस, ये तो बदलता रहता है. ये सनो है ना, ये जो इक्विटी का विचार है समय समय के मुताबिक बदलता रहेगा. तो उस बात को ये अभी ध्यान रखेंगे और उसके मुताबिक ही हिंदू लॉ को इंटरप्रेट किया जाएगा और उसके बेसिस के ऊपर ही डिसीजन लिए जाएंगे. आई होप इट इज़ वेरी क्लियर. ग्रेट. सो आई होप दिस सेशन इज़ कंफर्टेबल, आपको पसंद आया होगा. अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है इसको लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, एंड टेल टू लार्ज नंबर ऑफ पीपल टू बी पार्ट ऑफ प्रो टैलेंट. ओके, थैंक यू, हैव अ गुड डे.